Hello everyone, I am Zinkal Patel from Rafael BCA College. Now today I welcome you all to our subject Object Oriented Programming. Now today I am going to explain you another topic, that is static data members and static member function. Now first we have covered static variable. Static data members means static variable. Now first of all, what is static variable in C programming? You already learned static variable in C programming, right? So static variable have property of preserving their value even after they are out of their scope. Like for example, scope of the local variables and when we close bracket, right? If we declare a local variable in a function, then that scope of the local variable and when we close the function, right, when end of the function, the scope of the local variable till end of the function, right? So but in static variable it preserve value each and every time when we call function, then it preserve previous value. So here static variable are initialized only once and the compiler persists with the variable till the end of the program. Now the default value of static variable is 0. The static variable are allowed till the execution of program, right? Like for example, if we take a function like display and it have a static variable count, then it is initialized with 0. Then we increment that count variable, then when we call that display function, if we print the count value, then each and every time when we call display function, count variable will incremented by 1, right? It never becomes 0 again in second function call. So that is persistent, right? So that static variable we have already learned in C programming, but here C++ have also that concept of static variable. A data member of class can be qualified as static. The properties of static member variable are similar to that of C static variable. Now static variable are normally used to maintain value common to the entire class, but not for the particular object, but it refer common to the entire class. For example, a static data member can be used as a counter that record the occurrence of all the object, right? Now here some characteristics of static variable. First one is it is initialized with 0 when the first object is created. It is also initialized with given value, right? It means it is initialized to 0 or the given value when the first object of class is created. No other initialization is permitted. Matlab, when we declare that variable we have to initialize, and if we did not initialize, then it will initialize to 0 by default, right? Second one is only one copy of that member is created for the entire class and it is shared by all the object of the class, right? No matter how many objects are created, बट जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाए उसकी स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी, राइट? थर्ड वन इज इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज द एंटायर प्रोग्राम, राइट? उसका स्कोप कितना है? एंटायर program. And the fourth one is static member variable must be defined outside the class definition. Now for example, if we declare once in a class, then again we have to define that outside the class, right, using scope resolution operator. And this is necessary because the static data members are stored separately rather than as a part of an object, right? So they are also known as class variable. Now let us take one example. Let us take a class. In that example, class name test. Let us take one static variable
static integer count. Here no initialization is there, so it will by default initialize with 0 when we create first object. Now let us take another data member, non-static, that is integer number, and both are private. Now let us take public member function void get data. यहाँ पे हमने पैरामीटर्स लिए हैं integer a, मतलब कुछ वैल्यू integer वैल्यू हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. देन नंबर a, number equal to a and cnt count plus plus. Now here number मतलब यहाँ पे number वेरिएबल में वैल्यू एक्सेप्ट होती है पैरामीटर थ्रू. a से वैल्यू आएगी, सो नंबर इक्वल टू a. एंड स्टैटिक वेरिएबल काउंट cnt वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट किया है, सो हियर आई राइट cnt प्लस प्लस. हियर मैंने डेफिनेशन जो है गेट डेटा की वो क्लास में ही लिखी है. ठीक है. नाउ लेट अस टेक अनदर फंक्शन डिस्प्ले दैट डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल. cnt वेरिएबल को डिस्प्ले करता है, क्लास क्लोज होता है. ठीक है. नाउ एज आई सेड इन प्रीवियस रूल्स, स्टैटिक वेरिएबल को हमें क्लास के आउटसाइड भी एक बार डिक्लेयर करना है. क्लास के इनसाइड पहली बार और दूसरी बार आउटसाइड द क्लास. तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, इंटीजर टेस्ट यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड दैट वेरिएबल cnt. ये लिखना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे ये क्लास वेरिएबल है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिफ़र नहीं करता है. ठीक है, क्लास को रिफ़र करता है. सो वी हैव टू राइट दैट आउटसाइड द क्लास यूजिंग क्लास नेम विथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी तो एरर आएगी. देन मेन फंक्शन. अब मेन फंक्शन में हमने पहला सपोज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट क्लास का. टेस्ट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेमोरी में क्या हो जाएगा, एक मेमोरी स्लॉट अलोकेट होगा फॉर स्टैटिक इंटीजर काउंट वेरिएबल. ठीक है, दैट इज इनिशियलाइज विथ 0. राइट. नाउ जैसे ही हमने OB1, OB2, OB3 लिखा है, तब नंबर, जैसे कि मैंने बोला, जितने भी डेटा मेंबर्स है उसकी भी मेमोरी एलोकेट होगी. यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही स्लॉट एलोकेट होगा बिकॉज इट इज़ स्टैटिक. और नंबर के लिए ऑब्जेक्ट वाइज डिफरेंट स्लॉट एलोकेट होगा. लाइक यहाँ पे नंबर ऑब्जेक्ट 1 के लिए एलोकेट हुआ है, फिर नंबर वेरिएबल स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट 2 के लिए यूज्ड हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट 3 के लिए. ठीक है, उसमें अभी रैंडम वैल्यू होगी, अभी कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी. दैट इज़ फॉर OB1, देन दिस वन इज़ फॉर OB2 एंड दिस वन इज़ फॉर OB3. दैट इज़ फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के नंबर वेरिएबल होंगे. ठीक है. नाउ OB1 डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट 1 जो है वो गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा है और पैरामीटर में क्या पास किया, 100. मतलब 100 कहाँ पे जाएगा, इंटीजर a में. a से वैल्यू किसको एलोकेट होगी, नंबर वेरिएबल में. ठीक है, तो नंबर वेरिएबल की वैल्यू अभी क्या आ जाएगी, 100. तो OB1 में क्या स्टोर होगा, अभी 100. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट प्लस प्लस. काउंट मतलब अभी कौन सा वेरिएबल है, ये cnt. ठीक है, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी मेमोरी है, तो अभी उसकी वैल्यू क्या है, 0. 0 से क्या बनेगा, वो 1 बनेगा. ठीक है, तो अभी काउंट वेरिएबल की वैल्यू क्या हुई है, 1. अभी अगर मैंने डिस्प्ले कॉल किया तो डिस्प्ले में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल क्या आएगा, 1. ठीक है, राइट, समझ में आया. नाउ टेक अनदर ऑब्जेक्ट लाइक OB2 डॉट गेट डेटा फंक्शन. यहाँ पे कितना वैल्यू पास हुआ है, 200. तो a में कितना जाएगा, 200. फिर अगेन नंबर में कौन सा वैल्यू आएगा, 200. तो OB2 के नंबर वेरिएबल में कितना वैल्यू आएगा, 200. कितना वैल्यू आएगा, 200. ठीक है, तो यहाँ पे 200 स्टोर होगा एंड देन काउंट प्लस प्लस. अब यहाँ पे OB2 जो है वो 0 रिफर नहीं करेगा. OB2 किसको, काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 1, उसमें इंक्रीमेंट होगा. तो 1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, उसमें 2. ठीक है, तो अब अगर OB2 डॉट डिस्प्ले हुआ तो वैल्यू ऑफ काउंट क्या आएगा, 2 आएगा. ठीक है. नाउ लेट अस टेक थर्ड ऑब्जेक्ट OB3 डॉट गेट डेटा. 300 पास किया है इंटीजर ए में, तो नंबर ए की वैल्यू, OB3 के नंबर की ए की वैल्यू क्या आ जाएगी,
300 आ जाएगी। एंड देन काउंट प्लस प्लस, तो काउंट अब 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो अब अगर मैंने डिस्प्ले लिखा तो वैल्यू ऑफ काउंट क्या आ जाएगा, 3। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने OB1 डॉट डिस्प्ले लिखा या OB2 डॉट डिस्प्ले लिखा तो वैल्यू ऑफ काउंट अभी क्या आएगी, ठीक है, 3 ही आएगी। लाइक OB1 डॉट डिस्प्ले वो भी 3, OB2 डॉट डिस्प्ले वो भी 3 आएगा। समझ में आया? तो सभी ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक वेरिएबल की एक ही मेमोरी लोकेशन को रिफ़र करता है। स्टैटिक वेरिएबल की ऑब्जेक्ट वाइज डिफरेंट प्रॉपर्टी मेमोरी या कॉपी नहीं बनती है, राइट। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे मैं आउटपुट डिस्प्ले कर रही हूँ, वैल्यू ऑफ काउंट 1 फर्स्ट टाइम जब हम लिखेंगे OB1 डॉट डिस्प्ले, देन सेकेंड टाइम 2 OB2 डॉट डिस्प्ले, एंड थर्ड टाइम OB3 डॉट डिस्प्ले में 3, एंड देन OB1 डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो भी 3 आएगा, OB2 डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो भी 3 आएगा, राइट। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। फंक्शन गेट डेटा, ठीक है, ये तो समझ में आया। फिर हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया मेन फंक्शन में टेस्ट OB1 OB2 OB3, तब मेमोरी में काउंट वेरिएबल जो है CNT वेरिएबल जो है इनिशियलाइज 0 हो गया, और मेमोरी में 3 मेमोरी नंबर वैल्यू के लिए अलोकेट हुई तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट 1 का नंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट 2 का नंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट 3 का नंबर वेरिएबल। बट ऑब्जेक्ट 1 का काउंट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट 2 का काउंट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट 3 का काउंट वेरिएबल ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि काउंट वेरिएबल जो है वो स्टैटिक है, इसलिए उसकी सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी, राइट। नाउ OB1 डॉट गेट डेटा, जैसे ये फंक्शन कॉल किया, क्या हुआ, 100 वैल्यू जो है वो A में चली गई और A से नंबर में अलोकेट हुआ, राइट। एंड देन काउंट प्लस प्लस हुआ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, राइट। और काउंट इंक्रीमेंटेड बाय, काउंट की वैल्यू क्या है, 0, सो इट विल इंक्रीमेंटेड बाय 1, राइट। नाउ if I write OB1 dot display, so it will print count value 1, value of count variable is 1. Let us take another object OB2 dot get data, पैरामीटर में वैल्यू कितनी है 200, तो नंबर में कितनी वैल्यू जाएगी 200, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के नंबर वेरिएबल में क्या चेंज होगा, वैल्यू कितनी एलोकेट होगी 200, राइट। एंड देन काउंट प्लस प्लस CNT प्लस प्लस, तो यहाँ पे काउंट वेरिएबल 1 है तो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2, और अब जब हम डिस्प्ले करेंगे OB2 डॉट डिस्प्ले तो इट विल डिस्प्ले 2 एज वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल, राइट। नाउ लेट अस टेक थर्ड ऑब्जेक्ट OB3 डॉट गेट डेटा, 300 नंबर में जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 की नंबर वैल्यू क्या आ जाएगी 300, एंड देन काउंट प्लस प्लस, तो CNT काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। नाउ OB3 डॉट डिस्प्ले इट विल डिस्प्ले 3 एज वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल, राइट। नाउ इफ आई राइट OB1 डॉट डिस्प्ले OB2 डॉट डिस्प्ले, अब कोई भी डिस्प्ले हम फंक्शन कॉल करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रू, तो वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, राइट। लेकिन अगर हम नंबर की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट वाइज डिफरेंट आएगी, राइट। दैट इज द यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर? यहाँ पे क्या है, स्टैटिक वेरिएबल का ज़्यादातर यूज़ हमने प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो फाइंड करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल यूज्ड होता है, राइट। सो हियर आई एक्सप्लेन स्टैटिक वेरिएबल, होप यू अंडरस्टूड दैट वेरिएबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। होप यू अंडरस्टैंड टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्लीज मैसेज मी फॉर दैट। थैंक यू।